Hello and welcome to The Print. I'm Triya Gulati and today we are in Hoskas village. Now you must be wondering, what's new in HKB? Honestly, nothing. It's still the same cramped market with one too many bars and equal number of gullies to get lost in. So what are we doing here? Well, we are here to trace HKV's past, to trace its journey through the highs and lows. How Hoskas village went from being Delhi's most expensive market to now a go to spot for college kids to get a cheap drink. Hoskas village has witnessed a dramatic fall. What was once an exclusive enclave for Delhi chic crowd is today a den of drug peddlers, rundown bars, gym bros, wannabe upstarts, and allegedly even sex workers. 4 decades ago, HKV was a playground for Delhi's elite. Ambassadors, Mercedes, BMW lined its streets as Bollywood stars like Rekha, Dimple Kapadia, and Rajesh Khanna, along with expats, diplomats, the ladies who lunch, and the city's newly wealthy, swish set browsed and breezed through the market's fancy boutiques and bistros. It was the pin code of a confident, globalizing India that could embrace the world and also own its rural roots. So it found an escape in a gentrified village in South Delhi. तो किस तरह आप लोगों ने जैसे क्योंकि ये गांव था गांव में 8-9 दुकानें हैं ठीक है आई थिंक उसके बाद सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल था आपने इस जगह की मार्केटिंग कैसे करी आपने कैसे इस जगह एक गांव को ये बनाया कि भाई ये सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है कि एक्सक्लूसिव मार्केट फॉर एक्सक्लूसिव पीपल एक्सक्लूसिव मार्केट फॉर एक्सक्लूसिव पीपल इस तरह आपने मार्केट एड्स इस तरह निकाले थे एड निकाले थे बहुत महंगे वेरी एक्सपेंसिव मार्केट अच्छा ना इस चीज का क्या था कि जितने पैसे वाले लोग हैं वो ये साइकोलॉजी है वो वहाँ शॉपिंग करने नहीं जाएंगे जहाँ पे छोटी दुकानें होंगी ठीक है जब तुम खुद ही कह रहे हो हमारा माल महंगा है तो आएंगे लोग देखने महंगा माल देखने आएंगे तो आपने इस तरह से मार्केटिंग करी थी इस मार्केट की बहुत पब्लिसिटी करी है बहुत तो आपने इस मार्केट को अपने बिल्कुल प्राइम पे भी देखा होगा बहुत क्या था पे प्राइम देखा क्या प्राइम बनाया हमने फिर देखेंगे नहीं The HKV offered Delhi its first nightlife, which till the 1980s existed behind the doors of five-star hotels. When it began taking shape under the vision of socialite and entrepreneur Beena Ramani and her circle, it became a cultural pocket where fashion, art, and nightlife were spilled out in the open. So naturally, everyone wanted to see it. But to understand HKV's rise, one has to understand its timing. India's economy around late 80s and early 90s was opening up. A new consuming middle class was booming, money was beginning to flow, and the world had started paying attention to the country. Yet, amid this rush towards modernity, there remained a deep desire to hold on to an Indian identity. Even Hindi cinema of the 1990s echoed that sentiment, balancing global aspirations with pride in all things Indian in films such as Fir Bhi Dil Hai Hindustani. Long before Glocal became a marketing buzzword, it was Hoskas village that became its living expression. It was an upscale marketplace filled with designer boutiques and cafes, yet it carried the aesthetics of a village. A luxury clothing store would stand beside a charpai where men with white turbans and mustache smoked hookah. A few steps away, women milked cows in open courtyards. Peacocks wandered across the lanes while hundreds of green parrots crowded the trees. This collision of the urban and the rural was not accidental. It was a carefully curated experience. Delhi now had its own It village, much like New York's Greenwich Village. तरह का माहौल था किस तरह के लोग आते थे यहाँ पे कितनी शॉपिंग करते थे बिल कितने बन जाते थे उनके बिल तो खैर बहुत बन जाते थे यहाँ पे ज्यादातर एम्बेसी के लोग आते थे एम्बेसीज के क्योंकि उनको ये नहीं पता था तब तक कि यहाँ पे दुकानें हैं क्योंकि वो आते थे इसमें किले के अंदर क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर इतना अच्छा साफ सुथरी जगह थी ये और एनवायरनमेंट बहुत ये फ्रेश एयर और यहाँ पे पैरेट थे एक एक पेड़ के ऊपर 100 पैरेट बैठे हुए हैं ग्रीन और पिकॉक सड़क पे देख रहे हो सड़क पे निकल आते थे पिकॉक तो वो चीज़ दिखाने वो लाते होंगे और नियरेस्ट चाणक्यपुरी से पास है तो वो लोग आते थे लेकिन बाद में तो फिर ये इतना फेमस हो गया कि हर एम्बेसी के जो नहीं जानते थे वो भी क्योंकि शॉप्स खुल गई ना रेस्टोरेंट उस टाइम कोई नहीं था अच्छा खाने पीने की जगह नहीं थी बिल्कुल नहीं थी बस सिर्फ विलेज छोटा सा और जिसमें हाई फाई प्रोफाइल और एजुकेटेड लेडीज़ थी
और डिजाइनर थी वो सारी, और बिजनेस फैमिली से तो बिलोंग उनका सामान करती भी फिर थी। बहुत एक्सपेंसिव होता होगा। हाँ, 100 की चीज 1000 में। 100 की चीज। राइट। आई थिंक पहला रेस्टोरेंट या कैफे यहाँ पे बीना जी की डॉटर ने जो हाँ खोला हाँ था, हाँ, कॉफी शॉप जो खोली थी हाँ विद कैरियोके एंड ऑल, जहाँ पे लोग गाना वाना भी गा सकते हैं, सुन सकते हाँ हैं। हाँ, नहीं पहले तो सबसे शुरू में तो वो आया बिस्ट्रो। बिस्ट्रो। बिस्ट्रो रेस्टोरेंट खुला था छोटा सा, हम्म। उसकी पब्लिसिटी बहुत हुई। और फिर अब ये प्रोग्राम बना कि भाई नीचे का जो एरिया था, जो डीडीए पार्क था, तो वो थोड़ी दीवार तोड़ ताड़ के उन लोगों ने उधर से किले के अच्छा। अंदर जाने के लिए नीचे वो लकड़ी की स्टेयर्स बना दिए। तो ग्रुप आते थे, बसेस आती थी, और टूरिस्ट। टूरिस्ट नहीं थे वो, जो गेस्ट होते थे, गवर्नमेंट अच्छा, के गेस्ट भी आते गवर्नमेंट थे। के गेस्ट। तो नीचे स्टेज बन गया था, स्टेज के ऊपर हेमा मालिनी का डांस हो गया, और अलग अलग स्टेट के डांस होने लगे। अच्छा। उड़ीसा का अलग हो गया, झाऊ नृत्य अलग हो गया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो अखबार में छपता होगा। वो छपता भी था, और जो आते थे खाना खाने के लिए, तो पहले उनको तो ये अ, किले के दर्शन होते थे, फिर उसके बाद उनके डांस के प्रोग्राम बैठते थे। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट था वो, और वो बहुत बड़ा था। जैसे ये बुर्ज है, किले के बुर्ज, तो क्या था कि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम इसको, जैसे वो मूवी थी ना पाकीजा, पाकीज़ा। पाकीजा में क्या है कि ऊपर डांस हो रहा है एक बुर्ज पे, और वो सारे में दिखाई दे रहा है वो बुर्ज कि डांस कर रही हैं। तो इस तरह का था कि लोगों को एक एक चार्मिंग जो लाइफ होती है ना, कि हाँ भी क्यूरियोसिटी कि क्या है ऐसा, तो वो था, वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कितना वो कितना कितने टाइम तक ये जो हाई था हौस खास विलेज का आपके नजर में रहा? काफी टाइम रहा है, 15 साल तक तो रहा ही है ये। तो आप उसके बाद 89 में आए थे, 89 के 89 में आए हाँ, थे, तो हाँ, 15 साल उसके बाद वो 15 रहा। साल तो थ्रू आउट 90s आप कह रहे हैं कि 90s, हाँ हौस खास हाँ, विलेज वाज एट इट्स प्राइम। 15 साल तो थे ही थे कि वो बिल्कुल प्राइम टाइम इसका था, गोल्डन टाइम जिसे कहते हैं वो था। But building a fashionable commercial district inside a village came with troubles the city never fully resolved. Questions around authorization and regulation have always been around. Over the years, fires broke out, robberies were reported, and incidents of murder and suicide began to stain its glamorous image. Gradually, the wealthy drifted away from the village they had once helped popularize. Though HKB still remains on the bucket list of Delhiites, today its clientele is very different. The narrow lanes are now crowded with college students and people looking for an affordable night out. Over the years, several videos showing incidents of women allegedly being harassed in the area have surfaced online, raising repeated concerns about public safety and the growing sense of disorder. As you walk through the main lane of the village, you see tangled electric wires crisscross overhead mixed with decorative lighting stretched between rows of restaurants and bars. But the situation appears even more alarming inside the narrow bylanes. The cramped passages barely have enough room for people to walk through, while clusters of exposed wires, overloaded electricity meters, and tangled cables appear at almost every nook and corner. Several restaurants in Hoskas village are still operating allegedly without proper fire NOCs, raising safety concerns. पहले कुछ भी नहीं था, बस एक रास्ता आता था जगह जल्दी देना, और उसके बाद यहाँ पूरी मार्केट एरिया सारे these stores या uptown बहुत से तो क्या ट्रिप स्टोर्स और क्लब्स और बार्स with the same enemies optic खासी charm है वो चला गया और नहीं बस ये वैसे क्राउड आता है या बहुत लोग, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर भी खुले हैं, ये रेस्टोरेंट्स बहुत पास में बहुत सारे खुले हैं, या किराया बढ़ गया है। पर 90 के यहाँ से काफी सारे फैशन डिजाइनर के स्टोर थे, काफी बहुत हाई यूनिक अपडेट कहलाती है वक्त का। अभी आप स्टोर में माबश को पिकअप तो कह रहे इमेज चेंज हो गई है आपके साथ से ही, पर आपके साथ ही अभी भी ऐसा भी लाइक इमेज तो डाउन हो गई है, अच्छी फैमिलीज को लोग जैसे हम खुद प्रेफर नहीं करते यहाँ पे, हमें बिल्कुल टॉप नॉच ग्राउंड नहीं होता यहाँ से, साउथ इंडिया से हम प्रेफर नहीं करते भाई, यहाँ थोड़ा बड़े लोग लेगा। काफ़ी बहुत चीज़ यहाँ देख चुका हूँ, ठीक है भाई। अब ये ऐसा है, हाल ऐसे डिफरेंट हो चुका। पहले कैसा था? पहले तो मतलब वैसा ही था, मतलब ठीक ठाक था। अब तो बहुत मतलब इतना हो गया जो मतलब रहने वाला लायक नहीं हुआ यहाँ पे है। अब मतलब ऐसा है यहाँ पे, मतलब जो भी है बहुत डिफरेंट है।
और बहुत यहाँ पे मतलब कुछ करना पड़ता है। पहले जब आप आए थे यहाँ पे 99 में आए थे, 99 से पहले 1999 में आए थे। 99 में आप आए थे, तो ये मार्केट कैसी थी, कैसे लोग आते पहले थे, इतना वो नहीं था, अभी बहुत कुछ है, बदल गया। किस तरह से बदल गया? बदल के इस तरफ जो आप मतलब आप पब्लिक बढ़ मैंने पब्लिक बढ़ता है तो आप आदमी वैसे बहुत बदलता है। पब्लिक बढ़ती है तो आदमी बदलते हैं। तो आपको क्या लगता है इस मार्केट की अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है। तो पहले ऐसा क्या था जो अब ऐसा नहीं है? पहले बहुत सुविधा था, अब वैसे नहीं है। सुविधा माने तो सुविधा मतलब ये सब मतलब काफी कुछ था, ऐसे में आप हम नहीं बोल सकते। हमें नहीं, फिर भी आप बताइए, हमें ऐसे बता दीजिए। ऐसी बात ये है, मैं बोले कुछ डिफरेंट था, खुला था, सब कुछ था। अब डिफरेंट पब्लिक बढ़ता है तो सब कुछ अपने आप बढ़ता है ना। तो पहले दुकानें कम थी, अब हाँ। ज्यादा हो गई हैं। हाँ। तो पहले जब आप आए थे तो ये सब जो दुकानें शराब बेचते हैं वो सब था या नहीं? ना वो सब नहीं था। बिल्कुल तो उसकी ये अब जो बार बार सब खुल गए हैं, उनकी वजह से लोग भी जो आते हैं वो भी बदल गए हैं। नहीं ऐसे कोई 99 में तो यहाँ पे बाहर नहीं थे। नहीं, उस टाइम में तो ठीक था। तो वही आप कह रहे हैं जो चेंज आया है उस चीज से माहौल खराब है। उससे पब्लिक बढ़ेगा तो आदमी वैसे different अपने आप को बदलेगा। वैसे मैं ये लेकिन आप ज़्यादा होगा तो आपको तो वैसे सब कुछ बदल चेंज तो हो गई। मौसम देखने के उसके हिसाब से हो गई आपको। That said, the charm of old Pascas village, his even Tusumli's food farm, is not entirely lost. You just have to find those hidden gems. For instance, we are at this iconic Cicero Cafe, which was among the first few cafes to come here. And the view is certainly breathtaking. पहली बात तो ये ग्रीन एरिया है, फ्रेश एयर है, यहाँ पे तो वॉक करने आते थे मॉर्निंग। नीचे लेक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। ये जो एम्बेसी वाले हैं, ये दूसरे हाई फाई लोग हैं, ये ज़्यादा कीचड़ पिचड़ में जाते नहीं है, भीड़ भाड़ इलाका है, तो इनको भी लगता था लोनली लेस है। और जब दुकानें खुलने लगी फिर तो उनके मज़े ही आ गए। तो घूमना भी हो गया, खाने रेस्टोरेंट भी खुल गए, शॉपिंग भी हो गई, तीनों काम हो गए। तो एक्सक्लूसिव मार्केट जो ये बनी थी अमीरों के लिए, अ, जब आप उस मार्केट में देखते हैं कि 100 रुपए में 400 रुपए में कपड़े बिकना स्टार्ट हो गए, हम्म। क्या उसने भी कहीं ना कहीं इस मार्केट के चार्म को थोड़ा खत्म किया? हाँ, खत्म, पूरा खत्म हो गया, बहुत खत्म क्योंकि हो गया। अब इस मार्केट की इमेज तो वो खाने है। क्या है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट, पब हाँ। और ड्रग्स भी, हम्म, तो वो थोड़ा सा वो है। हम्म। तो उसको लेके कभी, जैसे आप लोग जो पुराने लोग हैं इस मार्केट के, आई एम श्योर आप लोग की आज भी यहाँ पे लोग सुनते होंगे, आपकी वो चलती होगी, तो आप लोगों ने कभी इकट्ठा होकर कभी डिस्कस किया हो कि कैसे मार्केट को वापस उसकी पुरानी ग्लोरी में लाया जाए? नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले की क्लाइंटेज और थी, ठीक है। अब क्या क्लाइंटेज आ रही है, जो नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने का थोड़ा बहुत जॉब लग गया उनका, बॉयज गर्ल्स आ रहे हैं यहाँ पे, यंगस्टर बहुत आ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत आ तो उनकी जो पॉकेट है इतनी नहीं है। अभी अभी काम लग रहा है, कुछ पेरेंट्स उनको पे कर रहे हैं, कोई इसमें रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ है, तो इतना पैसा नहीं है। यंगस्टर के पास कितना पैसा होगा, 1000 रुपये खर्च कर लेंगे, तो फिर उसी हिसाब से दुकानें खुलने लगी, जैसी क्लाइंटेज आने लगी वैसी दुकानें खुलने लगी, तो ये हुआ है। तो वापस वो टाइम नहीं आ सकता, गोल्डन टाइम नहीं आ सकता। आपने डिस्क्राइब किया था मुझे हौसखास विलेज की, जब आप आए थे तो ये कोरा कागज था। क्या पोटेंशियल दिखा था आपको जब वो 15 साल जो ये पीक पे रहा, क्या बन सकता था हौसखास विलेज? बहुत कुछ, मतलब दिल्ली की सबसे बेस्ट, मैं कहती हूँ बॉम्बे से भी ज्यादा बेस्ट यहाँ पे स्कोप था। ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं थी, गांव छोटा सा ही है, लेकिन जो आइटम्स यहाँ थे, जो लोग यहाँ के थे, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ही थे वास्तव में। But before it became a popular market, HKV was just a small village. It was fashion designer Beena Ramani who spotted the potential here.
One evening, while driving her old Fiat through the quiet lanes near Hoskas village, she was suddenly stopped by an elderly man dressed in a white dhoti kurta with a thick white mustache. He told her in English, "The monument is closed, come back tomorrow." The comment caught her off guard. She explained that she wasn't there to sightsee, she was actually looking for a place to rent. This unexpected roadside conversation eventually changed the future of Hoskas village forever. The man was Raghuveer Singh Chaudhary, a highly respected local figure who carried enormous influence in the village. People saw him almost like a sarpanch, someone everyone listened to. But after his death, as per the people, the villagers of HKV lost the plot. आपने बोला कि जो गाँव वाले थे उस टाइम पे उन लोगों के साथ आपका बैठना-उठना काफ़ी हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे हाँ, दुकान भी बहुत हाँ, खरीदी। मीटिंग हुई थी, बहुत कौन मीटिंग। थे वो मतलब कैसे थे वो गाँव वाले? क्योंकि आज आप अगर मैंने जैसे बहुत कोशिश करी यहाँ पूछने की तो मुझे सबने बोला कि अब आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे या जिनकी घर थे उन्होंने सब रेंट पे चढ़ा दिए। अब दुकानें सारी गेस्ट बनवा हाउस के बन गए। हाँ, या तो गेस्ट हाउस या बीएनबी के पीछे बन गए और हम्म। फिर वो यहाँ से चले गए। तो कैसे थे गाँव वाले? उनका क्या रोल था? और सबसे मज़ेदार बात कि अपना घर बेचकर या अपना घर बेचा रेंट पे नहीं, चढ़ाकर हाँ, रेंट पे दुकान फार्म चढ़ा हाउस ले लिए उन्होंने, बड़े-बड़े फार्म हाउस है। हुँ। फार्म हाउस है और बड़े-बड़े बंगलों में रह रहे हैं वो लोग तो। तो वो लोग उस टाइम पे कैसे थे और आप लोगों ने उनको कैसे कन्विंस किया? क्योंकि देखिए आप इन द एंड तो ये गाँव था। गाँव में आके बहुत उनको मुश्किल था। बोलना कि आप अपना घर खाली करिए, इसको दुकान बना के आप हमें दीजिए, हम यहाँ पे सामान बेचेंगे। हाँ, ये उनको समझाना मतलब कैसे थोड़ा समझाया मुश्किल आप था। लोगों ने? मैं बताती हूँ आपको, जैसे ही मेरी दुकान थी बेसमेंट में तो लोग रह रहे थे यहाँ पे। हाँ। तो मैंने जब देखा कि ये किले के पास है और वैसे ही मैं बता चुकी हूँ आपको कि हम लोग बिजनेस फैमिली से तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। आज अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो फ्यूचर में 1000 कमाएंगे। तो वो सब कुछ देख समझ सी। उसके बाद हमने उसको बोला भाई तू ये खाली कर और तू ऊपर चला जा, पैसे हमसे ले और बनवा ऊपर है। उसको समझ नहीं आ रही, उसने हमें किराए पे दे दी, वो खुद खुद ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने का उसको लालच आ गया। हमने कहा अब तू और पैसे ले, इसको बेच। अब हम मालिक बन गए, ठीक है, किस्तों में हमने पेमेंट कर दी उसको। उसको जो पैसा आता रहा वो और चढ़ गया, फिर पहली फ्लोर से सेकंड पे पहुंच अब ये है 6 फ्लोर हो गए इसके हाँ, ऊपर हाँ। वाह! करते करते अब कोविड में उसकी डेथ हो गई उस आदमी की। तो ऐसे ही सब जगह में हुआ है। गाँव की औरतें सी रही हैं कपड़ा और कोई चाय की दुकान यहाँ लेके बैठा हुआ है। वो तो एक को एक देख के फिर होता है ना कि भई ये आदमी इतनी जल्दी तरक्की कर गया। तो उन्होंने भी अपनी दुकानें किराए पे उठानी शुरू कर दी और उस टाइम जो थे ही ऐसे लोग रहे थे। उन्होंने और ये पैसों की तो चिंता ही नहीं, तभी तो इतने हाई रेट हो गए। अब उस टाइम अगर मैं 10,000 रुपए महीना दे रही थी उस टाइम, तो आज के हिसाब से लगा लो कितना होगा? रेंट आप दे रहे हाँ। थे 10,000 हाँ, बिजली पानी अलग था। तो आप कितना कमा रहे होंगे? कमाने वाली बात नहीं होती। जो काम करना है ये एक इच्छा के ऊपर है। बिज़नेस तो सब कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? यहाँ पे जितने भी जिन्होंने बिज़नेस करा है, वो पैसों के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। उन्होंने अपना टाइम पास करना था और अपने जो दिमाग की उनकी बीमारी थी ना कि कुछ करना है, बड़ा करना है, उस सैटिस्फैक्शन के लिए आए थे। लेकिन मैं आई थी सही में बताऊँ कि बिज़नेस के लिए आई। हाँ। उन लोगों जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने महरौली में खोली दुकानें, जब वो यहाँ से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा चल हमारे साथ। मैंने कहा परेशान क्यों हो गए? वही गाँव के साथ तालमेल नहीं बैठा। पर इतने साल तक तो बैठा। बैठा तो वो लालच आता क्या ना, अगर कोई आदमी आपके बाहर खड़ा होके हर साल पैसे बढ़ाने लगेगा, किराया बढ़ाओ और किराया नहीं दोगे तो अपनी गाय भैंसे तुम्हारे शोरूम के आगे बांध देंगे। फिर क्या करोगे? एक तरफ तो टूरिस्ट आ रहा है, ऊपर से गाय भैंसे जो है देख रहे हैं पोटियाँ करते हुए। तो वो वाला माहौल था, तो भागते नहीं तो क्या करते? हर आदमी को पीस चाहिए ना। अगर मान लो मेरी दुकान के अंदर भी कोई बाहर कुछ हो रहा है, तो कौन आएगा? नहीं आएगा। तो बिज़नेस ऐसे नहीं होता जब तक अभी आपकी दुकान में जैसे फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट यहाँ पे सैटरडे नाइट काफ़ी बज़िंग होता है हाँ, ये हाँ। पूरी पब्स वब्स। फ्राइडे को ज़्यादा रश रहता है क्योंकि तो फ्राइडे उस टाइम पे सैटरडे किस संडे तरह के लोग आते हैं आपके? लड़के-लड़कियाँ। कभी किसी ने परेशान किया हो ऐसे आके? ज़बर पूछ मतलब प्राइसेस पूछ के कुछ ना खरीदा हो? नहीं वो तो हर रोज़ होता है।
हर रोज लेकिन मेरे पास इतनी महंगी चीजें नहीं है। मैं जैसे बच्चों की चीजें तो मैंने अपना, क्योंकि अब मेरा रेंट नहीं है तो मैं सस्ता बेच देती हूँ। अगर सपोज मुझे 10-20 रुपए भी बचे होंगे ना, तो मारवाड़ी जैन यही है कि वो भी जो आ रहा है वो काय को छोड़े, वो भी तो दे के जाओ। तो वो वाला हिसाब है अपना। As the sun sets, the HKV comes to life. It's all lit up. Now, this is the aesthetic that you see on Instagram. And as the night gets younger, the music will only get louder. You will see more youngsters out there dressed in their very best, partying out, living their best lives. But looking at this shebang, the people who laid the foundation of this marketplace, they take a sigh. For them, Hoskas village was a Kora Kagas. They wanted to make this market a market for the riches, a market where the essence of rural India meets the modern marketplace. But unfortunately, the greed for money led to its downfall. Or as Kusum ji said, पैसे वाली जगह को पैसा ही ले डूबा. Thank you for watching. This is Triya Gulati with video journalist Tarini for The Print.